of young children to come. These forefront of the parade is commanded by sub-platoon of the parade. In the front of the saluting base, the tree of the parade. Now, I would like to briefly read out the names of the faculty members and the administrative staffs of Central Training College, Mudkhet, Maharashtra. Shri C.T. Venkatesh, IGP, Principal. Shri Ved Prakash Tripathi, Commandant, Chief Training Officer. Shri Deepak Kumar, Deputy Commandant. Shri Arun Kumar, Deputy Commandant. Shri Sehnawaz Hussain, Deputy Commandant, Training. Shri Jackie Kumar, Assistant Commandant. Shri Vasudev, Assistant Commandant, Police Medal for Gallantry. Shri Harisankar Prasad, Assistant Commandant. Dr. Nilesh Kumar, ACMO. Shri S. Ramesh, Assistant Commandant Ministerial. Dr. Sanjeevan, GDMO. पुरातन काल में बिगुल की मधुर ध्वनि के साथ फौजें रणक्षेत्र के लिए कूच किया करती थी। बिगुल की ध्वनि के साथ सैनिकों की धमनियों में रक्त संचार दोलित करती है तथा उनमें जोश और मनोबल को शिखर तक पहुंचाती है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए बिगुल ध्वनि का आज भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। Today's parade adjutant is Ankit Kumar Singh. Ankit Kumar Singh was born on 3rd January 2001 in the city of Brotherhood, Asansol, West Bengal. He completed his intermediate from DAV Asansol and BSc Honours in Physics from KNU and clinched silver medal in his honours subject. Before joining this prestigious force, he was a successful teacher. He has won several medals in debate and public speaking events at district, state and national level. Ladies and gentlemen, now I would like to draw your attention towards the ramparts of the fort. After 48 weeks of dedicated hard work and discipline, these young subordinate officers are marching towards the parade ground with great zeal and enthusiasm. जैसा कि आप देख रहे हैं कि किले के मुख्य द्वार से पंक्तिबद्ध तरीके से बैंड की मधुर धुन पर पूरे उत्साह और जोश के साथ यह सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी बैच 96 के प्रशिक्षणार्थी आकाश की ऊंचाइयों को छूने को तत्पर परेड स्थल पर आपके समक्ष पंक्तिवार होते हुए अनेकता में एकता जो कि हमारे देश की विशेषता है का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करते यह सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी बैच 96 के प्रशिक्षणार्थी यह विभिन्न धर्म एवं समुदायों के होते हुए भी मैत्रीपूर्ण भावों के साथ भाईचारा निभाते हुए देश की सेवा के लिए एकदम तैयार है। इन सभी जाबाज रणबांकुरों से कहना है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो आगे सारा आसमान बाकी है। Every one of us who is watching this parade is a witness of such great achievements by these young subordinate officers. It was never an easy job to successfully complete this training with ease. There have been times when they had to bear a high degree of pain. But these young subordinate officers never quit. They overcame their weaknesses and transformed it into their strength. परेड मध्य सज की कार्यवाही करती हुई परेड को पंक्तिबद्ध करने के लिए मध्य सज की कार्यवाही कराई जाती है। आप देख सकते हैं परेड के दस्ते अपना स्थान ले चुके हैं। परेड के मध्य में सबसे आगे परेड की कमान संभाले हुए परेड एडजुटेंट उप निरीक्षक प्रशिक्षु अंकित कुमार सिंह। The parade adjutant sub-inspector trainee Ankit Kumar has arrived in the parade ground. The parade adjutant is marching to the parade ground to hand over the charge of command to Parade 2IC. The parade adjutant has now handed over the charge of command to Parade 2IC. The parade adjutant, after handing over the charge of command to Parade 2IC, is now heading towards his designated position.
आज के परेड के 2IC SIRT आकाश थोपटे। SIRT आकाश थोपटे का जन्म 19 नवंबर 1999 को महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले की भोर तालुका के खानपुरा गांव में हुआ। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से पूर्ण की। SIRT आकाश थोपटे ने वर्ष 2019 में राजपथ पर NCC मार्चिंग कंटिजेंट को भी लीड किया। परेड कमांडर उप निरीक्षक प्रशिक्षु राजन कुमार परेड ग्राउंड पर उपस्थित हो चुके हैं। परेड 2IC उप निरीक्षक प्रशिक्षु आकाश थोपटे परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपने के लिए अग्रसर। परेड 2IC ने परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी। परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपने के पश्चात अपने निर्धारित स्थान की ओर जाते हुए परेड 2IC उप निरीक्षक प्रशिक्षु आकाश थोपटे Today's parade commander, Sub-Inspector Trainee Rajan Kumar, son of Sri Dinesh Kumar, was born on 14th October 1998 in a small town of Samli district, Uttar Pradesh. He got his undergraduate degree in physics, maths, and defense strategic studies from Dehradun. Ever since when he was a kid, he had a dream to serve the nation in the uniformed forces. So keeping this spirit, he joined National Cadet Corps during his graduation and did various camps like the Sthal Sainik Camp 2017 and Advanced Leadership Camp, Basic Mountaineering Camp, etc. After graduation, he joined Reliance Security and Risk Management Academy in 2020 and started his career as a security professional and worked at the world's largest refinery, Jamnagar, Gujarat, for approximately 3 years. But the passion of uniform kept pushing him to join the uniformed forces. And in 2023, he joined Central Reserve Police Force. And today, he has completed his training from CTC Mudkhed. We are now eagerly waiting for the arrival of Sri Ved Prakash Tripathi, Commandant, Chief Training Officer, CTC Mudkhed, who will be in our midst in few moments. Ved Prakash Tripathi, Commandant, Chief Training Officer, Central Training College Mudkhed has arrived.
परेड ने सलामी देकर महोदय का स्वागत किया। Sri Ved Prakash Tripathi, Commandant, Chief Training Officer, Central Training College, Mudkhed, was born on 2nd July 1969. He belongs to Devriya district of Uttar Pradesh. After the completion of post-graduation, he joined this elite force as directly appointed gazetted officer on 31st May 1996. In 2012, he got promoted to the rank of commandant. During his service in this force, he had completed various courses such as Weapon Training Officers Course, Quartermaster Motor Transport Officers Course, Junior Command Management Course, Middle Command Management Course, Senior Level Internal Security Course, Staff Officer Course, Cybercrime and Information Security Course. And with these experiences and skills, he had served in various parts of the country like LWE areas, Jammu and Kashmir, Tripura, Delhi, Madhya Pradesh, Assam, Jharkhand, Uttar Pradesh, and Ministry of Home Affairs. Not only in CRPF, but he had also made this nation proud. So in recognition of his meritorious service, he had been awarded DGD's Commendation Letter 5 times, DG Commendation Letter twice, and IG's Commendation Letter 2 times, and many more. From August 2024, he had been appointed as Chief Training Officer in Central Training College, Mudkhed, Maharashtra, and have been playing a pivotal role in imparting trainees to these 421 DASO trainees. We wish you good luck in your future career, sir. SIRT नितिन शावक ने, इनका जन्म 28 मार्च 1997 को देवभूमि उत्तराखंड के जिले देहरादून में हुआ। इन्होंने अपनी स्नातक तक की शिक्षा DAV PG कॉलेज देहरादून से BO इकोनॉमिक्स से प्राप्त की। SIRT नितिन शावक ने निरंतर मेहनत करने का गुण अपने पिता श्री गंगाराम पराशर से सीखा, जो कि खुद अर्धसैनिक बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात है। इसी वजह से SIRT नितिन पराशर का भी फौज के प्रति रुझान बचपन से ही था। SIRT नितिन पराशर बैडमिंटन के राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडल तथा ऑल इंडिया पुलिस कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा तैराकी, घुड़सवारी, एथलेटिक्स एंड वेपन हैंडलिंग में खासा रुचि रखते हैं। इनकी माता श्रीमती प्रकाशो देवी हमेशा से ही इनकी प्रेरणा का स्रोत रही है, जिनकी हिम्मत और विश्वास के कारण आज SIRT नितिन पराशर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। Platoon number 2 Commander, Sub-Inspector Trainee Kuputo K. Awomi was born on 16th August 1998 to Kiehi and Yevili Awomi. He hails from Tahiko village of Nagaland. आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में इंतजार है श्री CT वेंकटेश IGP प्रिंसिपल केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय मुदखेड़ का, जो कि कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। श्री CT वेंकटेश IGP प्रिंसिपल केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय मुदखेड़ का आगमन। The parade has given a general salute to Sri CT Venkatesh, IG Principal, Central Training College, Mudkhed, and welcome him with great honor. इस सलामी से मानव प्रशिक्षुओं ने भाव व्यक्त किया है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि तालियों की गर्जना के साथ प्रिंसिपल महोदय का स्वागत करें।
श्री सीटी वेंकटेश, आईजी, प्राचार्य, सीटीसी सीआरपीएफ मुठभेड़ का जन्म दिनांक 17 अप्रैल 1965 को आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। महोदय, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद दिनांक 3 जुलाई 1989 में सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के रूप में सहायक कमांडेंट के पद पर सीआरपीएफ में नियुक्त हुए। आप 35 वर्षों की लंबी सेवा काल के दौरान इन सर्विसेज कोर्स यथा जेसीएमसी, एमसीएमसी, एससीएमसी, इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट कोर्स कर प्रखर कार्यकुशलता के साथ देश के विभिन्न कठिन एवं संवेदनशील क्षेत्रों जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, आसाम, त्रिपुरा, एलडब्ल्यूई थिएटर, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एवं एसपीजी जैसे विशेष संगठन में अपनी महती सेवाएं दी है। आपके कुशल नेतृत्व से समय समय पर आपको विशेष अलंकरणों से नवाजा गया। आपको स्पेशल ड्यूटी मेडल, इंटरनल सिक्योरिटी मेडल 2 बार एवं डीजी डिस्क एवं कमेंडेशन लेटर, डीजी एसपीजी के कमेंडेशन लेटर से सम्मानित किया गया है। आप इस संस्थान में प्राचार्य के रूप में जून 2024 से पदस्थ होकर इस संस्थान के तहत चल रहे प्रशिक्षण गतिविधियों में अपने उचित एवं सार्थक दिशा निर्देशों से प्रशिक्षण स्तर को और ऊंचा आयाम दिया है। हम आपसे निरंतर इन्हीं सेवाओं की आशा करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद महोदय। This Central Training College has been instrumental in transforming these young and talented subordinate officers into a man of actions. They have been trained to walk by the commands and orders set over them. Precisely, these are the men who will transform the well-conceived motto of CRPF, that is, service and loyalty, into reality. The subordinate officers passing out today will be setting a noble example for the next generations to come. गर्व करो इस वर्दी पर, गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, गर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन इस वर्दी के खातिर 81 का सीना चाहिए, फिर 5 अलग से फूले भी, घुटना भी ना जुड़ना चाहिए, हो कदम बराबर सधे हुए और आंख कान भी ठीक ठाक। इन सब खूबी के बावजूद भी घोड़े सा उड़ना चाहिए, चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिन यह सम्मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। क्या सोचा तुमने ईश्वर ने, क्यों तुम पर यह उपकार किया, क्यों जन्म दिया इस दुनिया में, सैनिक का हर आधार दिया, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई, क्यों जन रक्षक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया। इसका उत्तर खुद से पूछो, तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चयन हो तुम, पर तुमको इसका भान नहीं। तुम पूछ सको तो आंसू उनके जो दुदिदीनहीन हैं, शोषित हैं, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित हैं। इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धाम धरा भेजा, मानव हित में है श्रेष्ठ मनुष्य, करने को काम बड़ा भेजा। मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। प्रतीक तिरंगा एक दृढ़ संकल्प है अन्याय और गुलामी के विरुद्ध हमारे संघर्ष का। यह परिचालक है राष्ट्र की एकता और अखंडता का। तिरंगे के 3 रंग प्रतीक है शौर्य, शांति और समृद्धि के। चक्र प्रतीक है हमारी यश और कीर्ति का, जो कि सारे विश्व में फैली हुई है। बंधी हुई डोर हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचालक है। यह तिरंगा विश्व विजय का रूप है। परेड स्थल पर अपनी छठा बिखेरते हुए राष्ट्रीय ध्वज एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का निशान। Central Armed Police Forces, it is a fundamental requirement to inculcate in its personnel the sense of discipline, knowledge, work ethics, and operational efficiency. फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का।
Sri Deepak Kumar, IPS, Additional Director General of Police, Training CRPF, has arrived. परेड ने जनरल सैल्यूट देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। मैं दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि तालियों से माननीय अतिथि महोदय का स्वागत करें। Now the parade commander sub-inspector trainee Rajan Kumar is marching towards the saluting base to take permission for inspection of trainees from our honorable chief guest Sri Deepak Kumar, IPS, Additional Director General of Police, Training CRPF. जय श्रीमान 421 सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी प्रशिक्षु बैच संख्या 96 दीक्षांत समारोह परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर उप निरीक्षक प्रशिक्षु राजन कुमार द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने सहर्ष परेड कमांडर का अनुरोध स्वीकार किया और परेड का निरीक्षण करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री दीपक कुमार, IPS, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का परेड की टुकड़ियों की ओर प्रस्थान और उनके साथ है श्री CT वेंकटेश, IGP, प्रिंसिपल, केंद्रीय शिक्षण महाविद्यालय मुठखेड़ तथा परेड कमांडर उप निरीक्षक प्रशिक्षु राजन कुमार। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि तालियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। Sri Deepak Kumar is an IPS officer of 1994 batch who belongs to Assam Meghalaya Joint Cadre. He completed his graduation in political science. He served as superintendent of police in many parts of Assam, DIGP in headquarter SSB Patna, SSB headquarter New Delhi, and SIGP Western Range Assam, IGP Law and Order Assam, Commissioner of Police in Guwahati Metropolitan, ADG Assam, Director Northeastern Police Academy Meghalaya, and now taking the charge of Additional Director General of Police, Training CRPF in New Delhi. He was awarded Police Medal for Meritorious Service on Independence Day 2011, DG SSB Commendation Golden Disc, and President's Police Medal for Distinguished Service on Independence Day 2022. Now the inspection vehicle is heading towards the smartly dressed platoons whose heads are held high in honor and respect of the chief guest. In front of inspection vehicle is platoon number 1, commanded by Sub-Inspector Trainee Nitin Sawag. और अब निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 2 के सामने, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु कुपुतो के अवोमी। In front of the inspection vehicle is platoon number 3, commanded by Sub-Inspector Trainee Kundan Kumar. और अब निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 4 के सामने, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु रुपेश कुमार। In front of the inspection vehicle is platoon number 5, commanded by Sub-Inspector Trainee Solomon J. Baite. और अब निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 6 के सामने, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु CHS माथे। In front of the inspection vehicle is platoon number 7, commanded by Sub-Inspector Trainee Pradeep Kumar Yadav. और अब निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 8 के सामने, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु सलोम एडिसन सिंह। और अब इंस्पेक्शन व्हीकल परेड एडजुटेंट उप निरीक्षक प्रशिक्षु अंकित कुमार सिंह के सामने से गुजरती हुई। Sri Deepak Kumar, IPS, ADG, Training CRPF, was awarded the Union Home Minister Trophy and Medal for Base Training Institute at national level for the year 2021-22. Due to his extraordinary and high sense of commitment to duty, Sri Deepak Kumar, IPS, ADG Training, is now given the charge of Additional Director General of Police in Training Branch CRPF since 20th October 2023. When the pages of history were turned, innumerable sagas of bravery were written. It was 1939, a small force named Crown Representative Police took a small step to begin. The then Home Minister, Sardar Vallabhbhai Patel, vision in his eyes, and with time, it was nurtured and grown into Central Reserve Police Force, touching the heights of the sky. From the strength of 1,000 soldiers at Neemach, now it has spread across the nation with more than 3 lakh brave warriors. From the desert of Rajasthan to the dense forests of Chhattisgarh, from the snow-clad peaks of Jammu and Kashmir to the remote corners of the Northeast,
From maintaining law and order situation to providing security to nation supremacy, be it at the time of Ayodhya attack, be it at the time of parliamentary attack. We, the CRPF, have stood firm in the face of adversity, keeping our pride of service and nation. We, the CRPF, have the hope and trust of our countrymen as we never forget to maintain unity in diversity. परेड के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय एक बार पुनः मंच पर विराजमान। जवान शपथ ग्रहण की कार्रवाई एवं परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें। जवान जय जवान। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर ट्रेनी राजन कुमार ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से शपथ ग्रहण कार्यवाही एवं परेड को मंच से गुजारने की अनुमति मांगी और अगली कार्यवाही के लिए अपने स्थान की ओर जाते हुए परेड कमांडर राजन कुमार। राष्ट्रीय ध्वज सलाम परेड पर। अब कुछ ही क्षणों में राष्ट्रीय ध्वज टोली का परेड स्थल में आगमन होगा, अतः सभी से अनुरोध है कि जब राष्ट्रीय ध्वज टोली आपके सामने से गुजरे तो कृपया इसके सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। Rashtriya Dhwaj Toli will arrive in the parade ground in few moments. So everyone present here is requested to stand in its respect and uniformed are to salute. राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देंगे। राष्ट्रीय ध्वज सलाम जय। वापस करेंगे वापस। कमांडर शपथ ग्रहण के लिए स्टैंड अप। राष्ट्रीय ध्वजवाहक टोली की कमान संभाली है निरीक्षक जीडी संतोष कुमार ने। राष्ट्रीय ध्वज के वाहक होने का सम्मान मिला है उप निरीक्षक जीडी तोषेंद्र कुमार को एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निशान को एएसआई जीडी अजय धाने संभाले हुए हैं, जिनके हाथों में लहराते हुए ध्वज बताते हैं हमारे राष्ट्र की मजबूती एवं इस बल की क्रमठता को।
हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारी आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा एक दृढ़ संकल्प है। अन्याय और गुलामी के विरुद्ध हमारे संघर्ष का यह परिचालक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का तिरंगे के 3 रंग प्रतीक है। शौर्य, शांति और समृद्धि के चक्र प्रतीक है हमारी यश और कीर्ति का, जो कि सारे विश्व में फैली हुई है। बंधी हुई डोर हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचालक है। यह तिरंगा विश्व विजय का रूप है। परेड स्थल पर अपनी छटा बिखेरते हुए राष्ट्रीय ध्वज एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का निशान, ध्वजवाहक राष्ट्रीय ध्वज और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निशान को हाथ लगा परेड में शामिल सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों के पास से निकलते हुए राष्ट्रीय ध्वज एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निशान को हाथ लगा राष्ट्र रक्षा का प्रण लेते हुए परेड में शामिल सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी। India is our motherland, and our national flag holds great importance for each and every Indian. It is a matter of great honor for all of us to be a part of India. Our national flag is the symbol of our freedom, national pride, and history. The flag is not just a piece of cloth, it is a symbol of our heritage and identity. It represents hopes and dreams of our nation. In our national flag, the top band is of saffron color, indicating the strength and courage of the country. The white band indicates peace and truth with Dharma Chakra. The last band is green in color, which shows the fertility, growth, and auspiciousness of the land. The Dharma Chakra intends to show that there is life in movement and death in stagnation. Our national flag not only represents our great nation, but also the values we hold dear, a testament to our rich history, the dedication of our leaders, and the spirit of our people. इन सभी सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, देशभक्ति और कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करने की प्रतिज्ञा ली जा रही है। Minister the oath ceremony. मैं सुपुत्र श्री परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने धर्म से प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारतवर्ष का शासन, जो कि संविधान द्वारा बनाया गया है, का सच्चे मन से हितैषी रहूंगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। जल, थल और वायु में से जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। किस डायरेक्ट चित्र करेंगे, निकाल। अब राष्ट्रीय ध्वज टोली का परेड स्थल से प्रस्थान होगा।
अतः सभी से अनुरोध है कि जब राष्ट्रीय ध्वज टोली आपके सामने से गुजरे तो कृपया इसके सम्मान में खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, चल। नंबर 1 प्लेटून आगे प्लेट परेड कमांडर राजन कुमार परेड की शीर्ष की ओर जाते हुए परेड को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कुछ ही क्षणों में परेड माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। दर्शक गणों से अनुरोध है इन सभी का तालियों से उत्साहवर्धन करें। The entire venue is packed with dignitaries, officials and spectators, and everyone's eyes are fixed on this main function of today, where the sharp eyes of the senior officer will test the agility, promptness and hard work of these directly appointed subordinate officers. On the other hand, the eager faces of young children and women will take some inspiration from these directly appointed subordinate officers and take pledge to become like them in the days to come. These young men are the future leaders. They have come up to this level after showing immense courage and strength. They have proved themselves to be true leaders. सुंदर परिधानों में सुसज्जित, चेहरों पर जोश, हौसलों में बुलंदियों के साथ बैंड की मधुर धुन पर मार्च करते हुए सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी, इनके फौलादी हाथों में सुशोभित शस्त्र, आसमान की ऊंचाइयों से हौसले, घोड़ों की टापों जैसी तेज चाल, मानो ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है कि सागर की लहरें साहिल को छूने को बेताब हो। कदम से कदम मिलाकर जोश से लबरेज मातृभूमि पर मर मिटने का भाव लिए आगे बढ़ते आज के बाद यह देश के विभिन्न भागों में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। The Convocation Parade Squad marching towards the saluting base. At the forefront of the parade is commanded by Sub-Inspector Trainee Rajan Kumar, and the parade to IC is Akash Thopte. These soldiers are marching on the tune of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The first platoon of the parade in the front of the saluting base to greet the honorable chief guest is commanded by Sub-Inspector Trainee Nitin Sawag. और अब दूसरा दस्ता मंच के सामने से गुजरेगा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु गुपुतो के अवोमी। Now the platoon number 3 of the parade, marching with full pride towards the saluting base, is commanded by Sub-Inspector Trainee Kundan Kumar. और अब परेड का चौथा दस्ता मंच के सामने से गुजरेगा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु रुपेश कुमार।
Now the platoon number 5 of the parade, in a wonderful turnout in front of the saluting base, is commanded by Sub-Inspector Trainee Solomon J. Baite. पूरा परेड का छठा दस्ता मंच के सामने से गुजरेगा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु CHS बाते। Now the platoon number 7 of the parade, in a wonderful turnout in front of the saluting base, is commanded by Sub-Inspector Trainee Pradeep Kumar Yadav. पूरा परेड का आठवां दस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रशिक्षु सलाम एडिसन सिंह। अब मंच के सामने से गुजरते हुए परेड एडजुटेंट अंकित कुमार सिंह। Marching is more than just about steps and formation. In fact, marching demands alertness and unspoken coordination. The drum beat rolls, the band strikes up, and a high-pitched voice issues a command. The synchronized swings of arms and the sounds of the thudding feet steers something within us. Besides being spectacular, the sense of dignity and pride these trainees brought to the mass pass is inspiring and wonderful. चौड़ा सीना, चमकता ललाट और फौलादी भुजाएं मानो कह रही हो, कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इन्हें चलते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो अथाह समंदर की लहरें ऊंचे उठकर हिमालय को छूना चाहती हो। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न दूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवर्ण अग्नि से जलो, वीर हो विजय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। This magnificent display of prestige and glory in this parade ground reminds me of the words of John Maxwell, who says, "A leader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way." Here I can pretty well observe his words very clearly. These young subordinate officers have now equipped themselves with the traits of such leaders, who, after this passing out parade, will be commanding their sections by knowing, by going, and by showing the ways to the troops. On this pleasant morning, I, you and the Almighty are the witness of this display of courage and discipline. समीक्षा क्रम में आगे आने के बाद परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान दिया गया। अब मैं श्री सीटी वेंकटेश, आईजीपी, प्रिंसिपल, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय से वेलकम स्पीच प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। महोदय। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ, उपस्थित वीर नारी और उनके परिवारजन, इस समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए आए विशेष अतिथिगण, केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र कॉलेज के जवान, अधिकारी व उनके परिवारजन, विभिन्न मीडिया समूह के अतिथिगण, मैं आप सभी का सीटीसी मुदखेड़ के इस प्रांगण में दीक्षांत समारोह के अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
आज इस दीक्षांत समारोह में मौजूद 96 बैच के 421 ट्रेनीज के 48 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2023 से हुआ। इन ट्रेनीज को देश भर में तैनात सीआरपी के विभिन्न बटालियंस में तैनात किया गया है, जहां पर ये इस समारोह के बाद तैनात रहेंगे। इन ट्रेनीज को 48 हफ्ते के इस कठिन प्रशिक्षण में जंगल वारफेयर के विभिन्न क्षेत्रों, फिजिकल ट्रेनिंग, वेपन्स ट्रेनिंग, रूट मार्च, जिसमें वेपन के और अन्य भारी सामान के साथ 20, 30 एवं 40 किलोमीटर की रनिंग, हर तरह की ड्रिल जिसमें फुट ड्रिल, आर्म्स ड्रिल, प्लाटून एवं कंपनी ड्रिल शामिल है, में निपुण बनाया गया है। इसके साथ ही इन्हें मॉडर्न और न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन्स के साथ तथा गैजेट्स की ट्रेनिंग देकर आज के ज़माने की चुनौतियों को निपटाने के लिए सक्षम बनाया गया है। विशेष रूप से इन युवा अधीनस्थ अधिकारियों को नक्सल व आतंकवाद विरोधी अभियान की प्रशिक्षण भी दी गई है। एंटी हाईजैकिंग, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट प्रैक्टिसेस, मैप रीडिंग, एंटी राइड ड्रिल, एम्बुश, काउंटर एम्बुश, कॉर्डन एंड सर्च, रोड क्लियरेंस ऑपरेशंस और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के संबंधी उच्च कोटि की ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें व्यावहारिक ट्रेनिंग देने और देश के विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली से अवगत कराने हेतु स्टडी टूर पर लातूर, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं अहमदाबाद स्थित विभिन्न संस्थानों में भेजा गया। फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज में इन्हें नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट जेल सहित नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के कई लोकल पुलिस स्टेशन, एयरपोर्ट का विजिट कराया गया और उन विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया गया है। 51 mm मोटार, राइफल ग्रेनेड, MMG, UBGL, रॉकेट लॉन्चर्स आदि की फायरिंग मध्य प्रदेश स्थित नीमच में सीआरपीएफ के फील्ड फायरिंग रेंज में कराई गई है। अगस्त माह के भीषण गर्मी और बरसात में 1 महीने का जंगल कैंप कराया गया है, जहां ट्रेनीज को चैलेंजिंग सिचुएशंस में जंगल सर्वाइवल की कठिन प्रशिक्षण में सफल रहे हैं। महोदय, इस परेड में आपकी गरिमामयी उपस्थिति देश सेवा में पहला कदम लेने वाले इन सभी जाबाज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए प्रेरणा की एक स्रोत तो है, साथ ही इनके लिए एक बड़ा आशीर्वाद भी है। सीटीसी मुदखेड़ प्रांगण की तरफ से मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर इन युवा अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए यहां पर आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि इस भव्य समारोह में शहीदों के परिवार से वीर नारियां उपस्थित है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वीर नारियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करने की कृपा करें। साथ ही वीर नारी श्रीमती लता चित्ते, वाइफ ऑफ शहीद चित्ते गजेंद्र ज्योतिराम, कंधार, नांदेड़ से निवेदन है कि आप मंच पर उपस्थित होने की कृपा करें। शहीद चित्ते गजेंद्र ज्योतिराम जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में 122 बटालियन में अपनी तैनाती के दौरान दिनांक 29 अप्रैल 2001 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राष्ट्र रक्षा हेतु अपने प्राणों का न्यौछावर कर राष्ट्र रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर वीरगति को प्राप्त हुए। हम सभी शहीद चित्ते गजेंद्र ज्योतिराम को हृदय से नमन करते हुए राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। Sahid Siti Mortate Vilas Piraji of 138 Battalion CRPF attained martyrdom due to injuries sustained in serial IED blast on 23rd May 2005 while breaking out the ambush laid by Maoists in Ago village, Bastard district, Chhattisgarh. We salute the martyrdom of Sahid Mortate Vilas Piraji and his family members for his supreme sacrifice and courage. Thank you, sir. Yes, sir. Now I request our honorable chief guest to honor the directly appointed subordinate officers who secured first position in various fields of this training by giving them trophies. And the principal is requested to lead the honorable chief guest.
trophy in the sequence is the trophy of Best in Indoor. The trophy of Best in Indoor goes to Sub-Inspector Trainee Chingthad Somintang Mate. He secured first position in all indoor subjects by performing best. Sub-Inspector Trainee Chingthad Somintang Mate. The next trophy in the sequence is the trophy of Best in Outdoor. Now the trophy of Best in Outdoor goes to Sub-Inspector Trainee Rajan Kumar. He showed the best performance in all the outdoor activities. Sub-Inspector Trainee Rajan Kumar. The next trophy in the sequence is the trophy of Best Fiber. The trophy of Best Fiber goes to Sub-Inspector Trainee Lalit Tunwal. He secured first position by performing best in firing from various weapons. Sub-Inspector Trainee Lalit Tunwal, the Arjun of Daso 96 batch. So the trophy of all-round best goes to Sub-Inspector Trainee Chingthad Somintang Mate. He secured highest marks in overall indoor subjects and outdoor activities during these 48 weeks of rigorous training. Once again, all-round best cadet, Sub-Inspector Trainee Chingthad Somintang Mate. Now, I take this opportunity to call upon Sri C.T. Venkatesh, IG, Principal CTC Mudki, to kindly present a memento to our Honorable Chief Guest, Sri Deepak Kumar, IPS, Additional Director General of Police, Training, as a token of respect and remembrance. श्री वेंकटेश आईजीपी एवं प्राचार्य सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज, सम्मानित वीर नारियां, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुदखेड़ सीटीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, उपस्थित अतिथिगण, डैसो 96 प्रशिक्षुओं के सम्मानित अभिभावकगण, सीटीसी मुदखेड़ के परिवारजन, प्यारे बच्चे, प्रशिक्षक एवं स्थानीय प्रेस के सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी लोगों का केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी क्रम संख्या 96 के प्रशिक्षुओं को परेड के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देता हूं। साथ ही इन प्रशिक्षुओं को उच्च गुणवत्ता और अनुशासित प्रशिक्षण के लिए सीटीसी मुदखेड़ के सभी अधिकारियों एवं स्टाफ को बधाई देता हूं। आज आपके प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूर्ण हुआ है और आप एक प्रशिक्षार्थी से अधीनस्थ अधिकारी बन गए हैं। पिछले 48 सप्ताहों के दौरान आपने इस संस्थान में जो सीखा है, अब उसे वास्तविक रूप देने का समय आ गया है। आपको देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जा रहा है और विभिन्न जटिल परिस्थितियों में इसी सिखलाई के बल पर आपके कार्य करना होगा। आपकी कार्यकुशलता के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा राष्ट्र की साख भी आपसे जुड़ी हुई है। आप सभी को गर्व होगा कि आप जिस महान बल के सदस्य हैं, इसका बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हॉट स्प्रिंग और सरदार पोस्ट में चीन और पाकिस्तान के नापाक इरादों को विफल करने के साथ ही संसद पर हमले व राम जन्मभूमि हमले को विफल करने जैसी अनेक गाथाएं बल के सदस्यों की कर्मठता, निर्भीकता और पराक्रम को दर्शाती है। यह बल हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सशक्त, महान तथा भरोसेमंद अर्धसैनिक बल है, जो अपनी निष्पक्षता और कर्तव्यपरायणता के लिए विख्यात है। आपको बल की इस छवि को कायम रखते हुए इसे और भी नई बुलंदियों तक ले जाना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी महिला टुकड़ी सहित संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के रूप में भारत से बाहर श्रीलंका, हैती, अंगोला, मोजाम्बिक, कोसोवो और लाइबेरिया में शांति दूत के रूप में अति सराहनीय कार्य किए हैं। साथ ही साथ भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में फैले उग्रवाद, नक्सलवाद और जो भी इस तरह के वामपंथी उग्रवाद हैं, इन सबों को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में भी सफल रही है। आज हमारे सामने आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक दंगों व आंदोलनों जैसी अनेक समस्याएं हैं। राष्ट्र विरोधी तत्व देश की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं। इसीलिए इस समय देश व समाज की आपसे और भी अधिक उम्मीदें बढ़ जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ ने इस संकल्प को पूरा करने का भार आप जैसे युवाओं के मजबूत कंधों पर रखा है। आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करेंगे। अतः मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के किसी भी भाग में आप तैनात हो, सबसे पहले वहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा व उनकी परंपराओं से पूरी तरह से अवगत हों। उनकी संस्कृति और परंपराओं का आदर करने के साथ साथ उनसे बेहतर व्यवहार करके आप अपनी तैनाती के उद्देश्य को सफलता से प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। वर्तमान में नक्सलवाद की गंभीर चुनौती देश के सामने है और सीआरपीएफ की अधिकतम तैनाती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ही है और आप में से कई नौजवानों की तैनाती इन क्षेत्रों में होगी। इन इलाकों में से अधिकतर इलाके पिछड़े और अविकसित हैं।
आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके अधीन कार्यरत कार्मिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे और उनकी कार्य पद्धति बुनियादी सिखलाई के अनुरूप रहे और उस समय आपका प्रशिक्षण, आपकी सिखलाई, आपके हौसले व आपका विचार काम आएंगे। विगत वर्षों में प्राकृतिक एवं कृत्रिम आपदाओं के कहर से देश का शायद ही कोई भाग अछूता रहा हो। इन आपदाओं से निपटने के लिए एवं इससे होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए भी बल समय समय पर राज्य सरकारों की मदद के लिए हमेशा तैनात होता रहा है। इस संदर्भ में सीआरपीएफ के द्वारा समय समय पर किए गए आपदा राहत कार्य सदैव प्रशंसनीय रहे। आज का दौर बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आज हमारा देश विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के रूप में उभर कर सामने आया है, परंतु इसके साथ ही राष्ट्र को अपनी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा समाज में शांति बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्र की प्रगति उसकी शांति पर निर्भर करती है। राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए इस बल की अहम भूमिका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बल के सदस्य बनकर आप पूरी जिम्मेदारी से इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और देश को शांति के पथ पर आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देंगे। देश के हर नागरिक की प्रतिष्ठा की रक्षा और निष्पक्ष भाव से कानून के दायरे में रहकर दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपको सदैव तत्पर रहना पड़ेगा। मैं पुनः प्रशिक्षुओं के अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में मैं सभी सम्मानीय अतिथियों, महिलाओं, बच्चों और मीडिया के सज्जनों को धन्यवाद करता हूं। आपने यहां अपनी उपस्थिति दी। मैं एक बार पुनः आप सभी नवनियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों के उज्जवल सफल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मुख्य अतिथि महोदय को और सभी संगत, मुख्य अतिथि महोदय कीप परेड कमांडर और सभी प्लाटून कमांडर्स अब परेड के लाइन बंद होते हैं। The courage of these directly appointed subordinate officers after the swearing in ceremony is saying something like, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Today they have completely dedicated themselves to the service and protection of our motherland. From today onwards they have only one religion, that is maintaining peace in the country. There is an ideology enshrined in 3,000 years old Tamil literature which says, when there's righteousness in the heart, there's beauty in character. When there's beauty in character, there's harmony in home. When there's harmony in home, there's order in the nation. When there's order in the nation, there's peace in the world. Float. Now, I request Principal to introduce the parade commanders to our honorable chief guests. Commanders, float. Parade tricep, निष्क्रमण के लिए stand up. अब परेड के मध्य में परेड की कमान संभाल रहे हैं परेड ट्वाइसी आकाश थोपटे। Commanders, one by one. Commanders, तनी से तनी घूम. Direction! और अब शुरू होने वाला है दीक्षांत परेड का दिल छू लेने वाला एक मुख्य आकर्षण, पील ऑफ यानी निष्क्रमण की प्रक्रिया। इस अंतिम दहलीज को पार करते ही नौजवान सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर पदस्थापित हो जाएंगे।
मैं राष्ट्रकवि दिनकर के इन शब्दों से इन नौजवानों के उज्जवल भविष्य और कामयाबी की मनोकामना करता हूं। छिलके उठते जा रहे नया अंकुर मुख दिखलाने को है, यह जीर्ण तनोवा सिमट रहा आकाश नया आने को है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो शपथ इन्होंने कुछ क्षण पहले हम सभी को साक्षी मानकर तथा अपने गौरवशाली राष्ट्रध्वज और बल ध्वज को साक्षी मानकर ली है, उसे वो पूरी तरह अमल में लाकर अपने देश की तरक्की में भरपूर योगदान देंगे। हम मुबारकबाद देते हैं उन सभी सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी एवं उनके परिवारजनों को जिन्होंने आज देश सेवा की कसम ली। The journey of 1,000 miles begins with a single step. Today, the final step taken by these officers will be their first step in the service of nation. From here onwards, they will be traveling along challenging roads where they will be tackling various kinds of law, order and situations. This will be the man who will provide nation the true leadership at the time of need. Everyone of us who is watching this parade is a witness of such great achievement by these young officers. It was never an easy job to successfully complete this training with ease. There have been times where they had to bear high degree of pain. Also, there have been occasions when the body had touched the pinnacle of endurance and patience. But these officers never quit. They overcome their every weakness and transform it into their strength. And it is their earnest effort that made them a real life hero, a real life champions, a real life hero. What they have won today is absolutely commendable. For every human being, there exists an ocean of dreams, but there are few who make it happen. The passion of to wearing uniform requires something more than just normal efforts. To prove ourselves better, we must take every challenge with high level of commitment and persistence. Today, their dream is fulfilled. After a couple of moments from now, these young combat leaders will be adorning their shoulders with two shining stars of subordinate officers. Let me understand you this fact that this man have not received it as a privilege, rather they have earned these stars. Also, they have earned high degree of respect, social prestige, and the power to change the world with their vision. We have a section of brass band and pipe band of CRPF from GC Pune and GC Bangalore. The brass band is commanded by Sub-Inspector Brass Band GM Pillai, and the commander of pipe band is Sub-Inspector Pipe Band G Retna Mani. They played various tunes in the march past such as Entry March Silver Jubilee, Kadam Kadam Badhaye Ja, CRPF theme song Desh Ki Rakshak, and Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Once again, a huge round of applause for the brass band and the pipe band. सभी दर्शकगणों से नम्र निवेदन है कि अपने यथास्थान पर विराज रहें। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे सीआरपीएफ सीटीसी मुठभेड़ की तरफ से आप सभी के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस प्रेजेंट किए जाएंगे। Requesting everyone present here to please be seated in your respective places as we are about to witness a lot of exciting shows and skills from the physical training instructors of CTC Mudkhed.
मलखंभ भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी लकड़ी के एक ऊर्ध्व खंबे या रस्सी के ऊपर तरह तरह के करतब दिखाते हैं। वस्तुतः इसमें प्रयुक्त खंबे को मलखंभ ही कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश राज्य का खेल है। 2013 में राज्य खेल घोषित कर दिया गया। मलखंभ दो शब्दों से मिलकर बना है, मल तथा खंभ। मल्ला का मतलब पहलवान तथा खंभ का मतलब खंबे से होता है। दर्शक गणों से नम्र निवेदन है कि अपने यथास्थान पर विराजे रहें। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। जो कमाए वो धनवान है, इन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मुश्क सवारी तेरी सब पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां नाक हो कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। चले एक चिंगारी प्रतिशोध से खड़ी रावण की लंका जले। शत्रुओं की कतारे एक अकेले से हारे, कण भी पर्वत हुआ रे
दर्शक गणों से निवेदन रहेगा कि तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। दृष्टिगोचर करें। अब हमारा अगला प्रदर्शन योग है। इसका आयोजन मुख्य आरक्षी जीडी दिलबाग यादव के नेतृत्व में किया गया है, जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय से योग्यता प्राप्त है। योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है, अर्थात विभिन्न धर्मों व आस्थाओं के जन्म लेने से पहले योग का जन्म हो चुका था। इसलिए योग का किसी जाति धर्म से संबंध नहीं है। इसकी उत्पत्ति मानव कल्याण के लिए हुई है। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है, कल्याण का विज्ञान, यौवन का विज्ञान, शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान। सूर्य नमस्कार। यह आसन शरीर के प्रत्येक अंग को मालिश प्रदान करता है। यह आसन शरीर को लचीला व सुडौल बनाने में सहायक है। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन शरीर को सुदृढ़ व स्मरण शक्ति बढ़ाने में यह आसन सहायक होता है। वृक्षासन शरीर को संतुलित व एकाग्रता बढ़ाने में यह आसन उपयोगी है। वीरभद्रासन यह आसन कंधे, पीठ, घुटने एवं गर्दन की अकड़न से राहत व शरीर को सुडौल बनाता है। बैठकर किए जाने वाले आसन। अर्ध उष्ट्रांग आसन यह आसन कब्ज, पेट दर्द से मुक्ति दिलाने तथा हृदय क्षेत्र में रक्त संचार वृद्धि में सहायक है। शशांक आसन तनाव व चिंता कम करने तथा पाचन संबंधी रोगों से छुटकारा दिलाने में यह आसन सहायक है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। सलभासन यह आसन पेट की मजबूती बढ़ाता है तथा पाचन क्रिया में सहायक है। भुजंगासन यह आसन तनाव व थकान को दूर करता है तथा साइटिका की समस्या में सहायक है। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। उत्तान पादासन यह आसन पीठ व पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सेतु बांधासन तनाव व चिंता से मुक्ति दिलाने तथा थायराइड की समस्या में यह आसन लाभदायक है। सामूहिक आसन। आप देख सकते हैं कि इन आसन के दौरान उप निरीक्षक प्रशिक्षु विभिन्न प्रकार के आसन करके योग की मुद्राओं का
प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दर्शक गणों से अनुरोध करता हूं कि एक बार तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन करें। एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। Now the next demonstration in the sequence is UAC with rifle. Now ladies and gentlemen, put your hands together for the demonstration of various forms of unarmed combat with an art with weapon, which demands an alert mind, a strong heart with a confident face. दर्शक गणों से अनुरोध है कि तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन करें। These soldiers are the physical training instructors of CTC Mudki. They have learned this UAC kata with rifle in a very short span of time. All these physical training instructors are qualified in various streams of training. बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। These PTI trainers are well qualified in various streams. Some have completed a course of commando course, some in navigational course, some in combat course, and many more. Demonstration display will be followed by bike stunts from the PTI staffs. The bike stunners for today will be CTGD Praveen Kumar and CTGD Pradeep. And the trainer who will be lying on the thorns is ASIGD Prakash Jadhav. And iron nails on a wooden block. Let's give a huge round of applause for ASIGD Prakash Jadhav. Now the first bike stunner is CTGD Praveen Kumar. Let's give a huge round of applause for CTGD Praveen Kumar. उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और उत्साहवर्धन करें पीटीआई उस्ताद एंड टीम ऑफ बाइक स्टंट। Second performance was CTGD Pradeep. And once again, thanks to all the bike stunners, CTGD Praveen Kumar, CTGD Pradeep, and ASIGD Prakash Jadhav. Now, the next demonstration
will be breaking technique. PTI stunners will be breaking coconuts and tiles which is displayed in front of them. The participants of today's breaking technique will be HCDD, Dilbag Singh, HCDD and Prabhi. They will be breaking coconuts in a stone. HCDD Prasad Bagre, HCDD Bagul Kote, HCDD Lakshman Dhakar, HCDD Anmol Karande, CTDD Praveen Kumar. दर्शक जनों से अनुरोध है कि तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन करें। First performer HCDD Dilbag Singh. A huge round of applause. HCDD Prasad Bagre, HCDD Bagul Kote. Now HCDD Lakshman Dhakar, HCDD Amol Karande, CTDD Praveen Kumar. Now CTDD S. Seva Prasad. Now CTDD Lohit Laskar and CTDD More Ganesh. That was a wonderful and outstanding performance from our physical training instructors of a breaking technique. Now the next demonstration is breaking technique of stone. Chhati pe pathar todna. The performers will be Letne Wala. The performers will be CTGD More Ganesh. And the Todne Wala, the breaker of the stone, is ASI-GD Prakash Jadhav. वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन करें। This is one of the most unique demonstration. Now CTGD Moraes. दर्शक गणों से निवेदन है जोरदार तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन करें। Now the next demonstration in the sequence, last but not the least, is a jump from ring of fire, which is considered as one of the most unique demonstrations, which will be performed by the physical training instructors of CTC Mudgate. The participants of this fire jump will be HCDD Lakshman Dhakar, CTGD Sajjad Hussain, CTGD S. Seva Prasad, CTGD Amit Rawa, CTGD Parveen Kumar, CTGD Arish Sheikh, CTGD Saddam Hussain, CTGD Gaurav Singh, CTGD Lohit Laskar. Now we are एक बार जोरदार तालियों से सभी पीटीआई उत्साह का उत्साहवर्धन करें। In the first sequence we have HCDD Lakshman Dhakar, HCDD Sajjad Hussain, CTGD Seva Prasad. A huge round of applause. Now the next in the sequence is CTGD Amit Rawa, CTGD Parveen Kumar, CTGD Arish Sheikh. A huge round of applause for the PTI staff. Now one of the most special skills from CTGD Saddam Hussain. जोरदार तालियों के साथ A wonderful performance from CTGD Saddam Hussain. Now CTGD Lohit Laskar. That was an outstanding performance from CTGD Lohit Laskar. वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह।
That was the end of today's demonstration. Once again, thank you all. सभी दर्शकगणों एवं परिवारजनों से अनुरोध है कि पाइपिंग सेरेमनी के लिए प्रस्थान करें। सभी दर्शकगणों एवं परिवारजनों से निवेदन है कि रैंक सेरेमनी के लिए प्रस्थान करें। हेलो ये अल्फा विंग के जो जल्दी से जो है अल्फा विंग अपना रैंक सेरेमनी करा के फोटो सेशन के लिए पहुंचे। अल्फा विंग के सभी अल्फा विंग जो है वो अपना रैंक सेरेमनी जल्दी करवा के अपने गार्जियन से और फोटो सेशन के लिए पहुंचे।
नाउ द ब्रास बैंड इज प्लेइंग। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। रविदीप सिंह शाही, एडीजी, केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं सभी सम्मानित दर्शकगणों का एकता और टीम वर्क का एक अनूठा प्रदर्शन आप सभी के सामने। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। DASO 95 trainees have learned this in a very short span of time. Encourage them by a round of applause. ये प्रदर्शन, ये मास पीटी का प्रदर्शन, यह प्रदर्शन निरीक्षक जीडी आफ्ताब आलम, सहायक उप निरीक्षक लालचंद जाट एवं सहायक उप निरीक्षक KM वाघमारे के नेतृत्व में अथक परिश्रम के बाद तैयार करवाया गया है। अब आपके सामने पुष्प फॉर्मेशन Displaying in front of you, flower formation. आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से इस सभी का उत्साहवर्धन करिए। Next in the sequence, you can see the boat formation by DASO 95 trainees. ये सभी ट्रेनीज पानी अब पी के नौका अपने के अपने शीर्ष प्लाटून पर में हैं खड़े हो जाए। सब इंस्पेक्टर ट्रेनी पवन कुमार यादव, यह प्रदर्शन पीटीआई शेर सिंह के नेतृत्व में DASO 95 के 64 उप निरीक्षक प्रशिक्षुओं द्वारा दर्शाया जा रहा है। इस प्रदर्शन में पीटीआई शेर सिंह का साथ दे रहे हैं पीटीआई लोहित लश्कर एवं पीटीआई सज्जाद हुसैन। अशोक है क्या? अब आपके समक्ष किले की फॉर्मेशन In front of you, the fort formation. और उसके साथ अलग अलग योगा आसन प्रस्तुत करते DASO 95 डायरेक्टली अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स क्रम संख्या 95 के Waving proudly the flag of India and the flag of CRPF. मास पीटी एरोबिक्स का ही एक रूप है। एरोबिक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे अकेला या ग्रुप में तालमेल के साथ किया जाता है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। एक जवान से लेकर वृद्ध व्यक्ति भी इस एक्सरसाइज को करने में सक्षम है। इस प्रदर्शन में जंपिंग एवं स्टैंडिंग भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस आपके समक्ष प्रस्तुत है। You can see their coordination in a very short span of time. ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है,
ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब तक धाराएं प्रतिकूल न हो, प्रतिकूल न हो। ये अशोक है क्या? अशोक, SIRT अशोक। Strength doesn't come from physical power, it comes from undefeatable will, and the DASO 95 trainees are showcasing the spectacular view of willpower and dedication with their perfection in their learning. महोदय, प्रदर्शन के अगले भाग में आपके समक्ष प्रस्तुत है रोप मलखम। यह प्रदर्शन PDI प्रांजित किया जाए तो मल्ल का मतलब पहलवान और खंब का मतलब खंबा है। सबसे प्रथम सब इंस्पेक्टर ट्रेनी दीपांशु बिदुड़ी उल्टा होकर रोप नमस्कार का प्रदर्शन आपके समक्ष करते हुए आप सभी से अनुरोध है तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। All these trainees have attained such level of physical standard in a short span of time under tremendous PD instructors. अब इसके बाद सब इंस्पेक्टर ट्रेनी अवध गुर्जर और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी सुधीर गोदारा आपके सामने अपसाइड डाउन रोप प्रस्तुत करते हुए। ये सभी मैं आप सभी की जानकारी हेतु बताना चाहूंगा, ये सभी DASO 95 बैच प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्होंने 20 से 23 सप्ताह के अथक परिश्रम के बाद शारीरिक दक्षता का यह आयाम हासिल किया है। इसी क्रम में आगे सब इंस्पेक्टर ट्रेनी पुरुषोत्तम, सब इंस्पेक्टर ट्रेनी अंकुश, सब इंस्पेक्टर ट्रेनी कृष्णकांत मीना एवं सब इंस्पेक्टर ट्रेनी सचिन राणा, ये सभी पुष्प के रूप में आपके समक्ष नमस्कार प्रस्तुत कर रहे हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आपके समक्ष पुष्प फॉर्मेशन। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख थोड़ा हारू मगर मैं फिर जीत जाऊंगा। इस क्रम में आगे सब इंस्पेक्टर ट्रेनी आकाश और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी राकेश अपने संपूर्ण शरीर का भार रस्सी की सहायता से अपनी कमर पर लेकर आपके समक्ष नमस्कार मुद्रा प्रस्तुत करेंगे। जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। इस क्रम में आगे सब इंस्पेक्टर ट्रेनी गौरव सिंह और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी साहिल आपके सामने अपने शरीर का संपूर्ण भार एक पैर पर रस्से की सहायता से लेकर नमस्कार मुद्रा प्रस्तुत करेंगे। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, ये मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है।
और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है इस कड़ी की मन को छू देने वाली एक मुख्य आकर्षण डायमंड फॉर्मेशन, जो कि प्रस्तुत किया जा रहा है सब इंस्पेक्टर ट्रेनी मुकेश, सब इंस्पेक्टर ट्रेनी राकेश बेनीवाल, सब इंस्पेक्टर ट्रेनी सुधीर गोदारा एवं सब इंस्पेक्टर ट्रेनी दीपांशु बिदुरी द्वारा। All birds find shelter during the rain, but eagles avoid the rain by flying above the clouds. And all the true eagles of CTC Mutkhed are present here. इस क्रम में प्रस्तुति जो कि उदाहरण है एक दूसरे पर अदम्य विश्वास एवं संपूर्ण सहभागिता का, यह प्रस्तुत है पिरामिड फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं ये सभी 12 उपनिरीक्षक प्रशिक्षु सभी एक साथ पिरामिड फॉर्मेशन करते हुए। महोदय, इसी क्रम में आगे आपके समक्ष प्रस्तुत है बीम एक्सरसाइजेस। यह प्रदर्शन पीटीआई शरद पवार के नेतृत्व में आपके समक्ष प्रस्तुत है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम सब इंस्पेक्टर ट्रेनी विकास और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी साहिल लश्करी ओवर ग्रिप बीम का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत। अब आपके समक्ष सब इंस्पेक्टर ट्रेनी शुभम कुमार और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी शिवम सिंह एल से बीम का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उदर के ताकत से अपने शरीर को एल शेप बना बीम लगाते ये प्रशिक्षु। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों से इन सभी का उत्साहवर्धन करें। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है सब इंस्पेक्टर ट्रेनी रुपेंद्र सिंह और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी विकास मीना एक हाथ से आपके समक्ष बीम का प्रदर्शन करते हुए। एक हाथ की सहायता से एवं मजबूत पकड़ से बीम लगाते ये दोनों डैशो 95 के प्रशिक्षु। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल वो पा लेता है जो हार नहीं मानता। इस बीम एक्सरसाइज की कड़ी में अब टो टच जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है सब इंस्पेक्टर ट्रेनी कपिल और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा। ये दोनों प्रशिक्षु अपने शरीर का संपूर्ण भाग गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ले जाकर अपने पैरों के अंगूठों को बीम से टच करते हुए अब आपके समक्ष प्रस्तुत है योग और बीम एक्सरसाइज की एक अविस्मरणीय प्रस्तुति पद्मासन बीम, जिससे प्रस्तुत किया है सब इंस्पेक्टर ट्रेनी सचिन साइनी और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी गौरव के द्वारा। और अब इस श्रृंखला में आगे सब इंस्पेक्टर ट्रेनी रॉबिन गौतम और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी अरुण कुमार बेदी मेडिसिन बॉल के साथ बीम का प्रदर्शन करते हुए मैं आप सभी की जानकारी हेतु बताना चाहूंगा, मेडिसिन बॉल का वजन 10 किलोग्राम है। अपने शरीर के वजन से 10 किलोग्राम ज्यादा भार लेकर बीम लगाते ये प्रशिक्षु। दर्शकों से अनुरोध है तालियों से इन प्रशिक्षुओं का उत्साहवर्धन करें। और अब बीम एक्सरसाइजेस की सर्वाधिक आकर्षित करने वाला प्रदर्शन शरीर की अदम्य ताकत और मन की एकाग्रता का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करते हुए सब इंस्पेक्टर ट्रेनी अदानी दिखो और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी क्रिस्टोफर पाओ आर अपने शरीर के संपूर्ण भाग को बीम के ऊपर ले जाकर पूर्ण मसलब का प्रदर्शन करते ये दोनों प्रशिक्षु
देखने में जितना कठिन लग रहा है उसे उतनी ही सुगमता से प्रस्तुत करते ये दोनों डेसो 95 के प्रशिक्षणार्थी। The most difficult beam exercises are displaying in front of you. सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं। दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। महोदय, प्रदर्शन की इस कड़ी में अगली प्रस्तुति है आर्म्ड और अनआर्म्ड कॉम्बैट स्किल्स की। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा का वह रूप है जिसकी मदद से चाहे वे व्यक्ति निहत्था हो या हथियार बन। इस प्रदर्शन में कुल 16 उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं ने भाग लिया है, जिसमें 7 महिलाएं और 9 पुरुष हैं। यह संपूर्ण प्रदर्शन पीटीआई एम सिल्वेंद्रम और पीटीआई सद्दाम हुसैन सिद्दीकी एवं पीटीआई महिला मधुरानी के नेतृत्व में हुआ है। इस समय आप देख रहे हैं राइफल ड्रिल का प्रदर्शन। आप देख सकते हैं इनका अलर्टनेस। विभिन्न फायरिंग पोजीशंस में आपके समक्ष फायर ड्रिल की प्रस्तुति करते हुए ये सीधे नियुक्त अधीनस्थ अधिकारी प्रशिक्षु बैच 95। बहुत ही कम समय में इन्होंने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन अपने आप में हासिल किया है। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। कायर है तकदीर पर रोते हैं, कायर है तकदीर पर रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। बदलते हालात को देखते हुए विभिन्न प्रकार की छेड़खानी की घटनाएं महिलाओं के सामने पेश आ रही हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को सशक्त बनाना जरूरी है, जिसके लिए हमारे बल में महिलाओं को खास प्रशिक्षण दिया गया है, जिसको सिखाने के बाद इनके सामने सिचुएशन क्रिएट करे गए हैं। In the sequence, the first example, we have Sub-Inspector Trainee Suman Rani and Sadanand, who will show you how to respond when someone grabs you from the back. Next in the sequence, Sub-Inspector Trainee Rinku and Edwin, displaying a perfect example to reply of eve teasing with neck chop, knee strike and elbow strike. Next in the sequence, Sub-Inspector Trainee A. Darshana and Akshay, displaying the tricks to release from neck grip and hair grip by eye poke, front kick and palm strike. अब आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर ट्रेनी संगीता और माइक को पेश करते हुए एक उत्कृष्ट उदाहरण, जब कोई पब्लिक प्लेस में आपका हाथ पकड़ ले। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है अगर कोई आपसे चाकू से प्रहार करे, SIRT दीपिका और SIRT भानु द्वारा। अगली पेशकश सब इंस्पेक्टर ट्रेनी शिल्पी और सब इंस्पेक्टर ट्रेनी जॉर्डन द्वारा, जो कि दिखा रहे हैं कि पिस्तौल को कैसे छीना जाए। Next in the sequence, SIRT Kavita and showing the rifle releasing technique in public places like riots, fair and mob. हालातों के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं।